لوگوں کی ریئل سینس میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں. جب وہ ان کی لائن میں کھڑے ہو کے جو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ لندن کی آواز یہاں پہ ہمارے کانوں میں صرف گونج رہی ہوتی ہے، معنی ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے الفاظ کے، لیکن تالیاں ہم مجبوراً بجا رہے ہوتے ہیں، ہم کو بجانی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہماری بجا دی جائے گی. اس وجہ سے میں ان سب ذہنی دلی طریقے سے جن کی اولادیں، اولادوں کے فیوچر سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی فیوچر جنریشنز جو قید میں ہے، جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، ان کی زنجیریں آج میں توڑوانا چاہتا ہوں. میں دعوت دینا چاہتا ہوں کراچی اور حیدرآباد والوں کو، خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں پہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ظلم کے خلاف سامنے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے نہیں ہو سکتے، کم از کم منع کرو ظالم کو، یار مت کرو. یہ وہ بھی نہیں کر سکتے، کمرے میں بیٹھ کے چھپ کے اف تو کر سکتے ہو کہ ظالموں پہ لعنت ہے. وہ تو کرو اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اگر باہر نکل کے نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ایک جو حق کے لیے چل رہا ہے، حق کے لیے جو بات کر رہے ہیں، ان کی فتح ہوگی. کیبلوں والوں سے مجھے ہمدردی ہے جن کو ابھی گن پوائنٹ پہ بند کیا جا رہا ہے. فیوچر میں مجھے آپ چینل والوں سے ہمدردی میں ایڈوانس میں کر لیتا ہوں، یقیناً آپ میں سے شاید میری یہ چند چپتی ہوئی باتوں کی وجہ سے کچھ غیرت مند ماں کے غیرت مند بہادر بیٹے ولی بابر بننے جا رہے ہیں. ان سے میں پہلے معذرت کر رہا ہوں. ولی بابر کا کیا قصور تھا؟ میں بربلا کہہ رہا ہوں، ایم کیو ایم نے مروایا، ایم کیو ایم نے مارا. 5 کلر ہم نے پکڑے، ان کی جوائنٹ انٹروگیشنز کی. ایک ان کا کلر میں آج نام لے لیتا ہوں، لیاقت، جس کی گاڑی استعمال ہوئی، جو پکڑی ہوئی ہے، جس نے فائر کیا، وہ مسنگ ہے. ویری امپورٹنٹ لنک مسنگ ہے. لیکن انشاءاللہ میرے میں اس طرح کی غیرت اور شرم باقی رہی تو انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں مذہبی ڈویژنز میں خلاف ہوں، میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جن دوستوں کو، بھائیوں کو نہیں پتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ڈبل تھینکفل ہوں، اور مجھے اس مذہب کے اس سیکٹ پہ ہونے پہ مجھے فخر ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ انسانیت کا درس، انسانیت کے لیے اپنی ذات کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنے ہر دنیا کے نعمتوں کی قربانی صرف ایک شخص نے دی، جن کا نام تھا امام حسین. میدان کربلا میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی ہر چیز کی قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے. ظالم کے سامنے نہیں جھکا. تو میرا اس مذہب سے تعلق ہے، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں، اور انشاءاللہ میں حسینیت پہ چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ آخرکار حسینیت کی کامیابی ہوئی. آج حسین کو سب اچھی طرح یاد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے نظر نیاز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جس دن میں نے مجھے چند جن کی خواہشات بہت اونچی ہیں، میرے قریبی دوست، آپ نے دیکھا شاہی سید کے گھر کوئی مجھے پیچھے سے پکڑ رہا تھا، کوئی کھینچ رہا تھا، کوئی نمبر بنا رہا تھا، کوئی نمبر ملٹیپلائی کر رہا تھا. اس کھیچم تانی میں انسان ہوں، میں کوئی
डिबेटर कभी भी नहीं रहा। फर्स्ट टाइम जब मैंने तकरीर की, मेरे लिटरली मेरी टांगें कांप रही थी, मैं तकरीर नहीं कर सकता था। तो मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए मैं एक ऐसे अल्फाज यूज कर गया जिसकी मुझे बहुत तकलीफ थी और आज भी है। पूरी कौम कभी भी खराब नहीं होती, पूरी मतलब इंडिया वाले सारे खराब नहीं है, जालिम नहीं है, पाकिस्तानी सारे जालिम और खराब नहीं है, लेकिन हर माशरे में बुरा और अच्छा होता है। हर बोली बोलने वाला वो इसी माशरे का एक फर्द है, तो कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा। मेरे से गलती हुई, मैंने रियलाइज किया, कुछ मुझे रियलाइज कराया गया। मैंने ये कह के कि अगर मेरे इन अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत करता हूं, और ये मेरा जाती ख्याल है, मैंने ये नहीं कहा था ख्याल था, इसलिए कि मैं हिस्टोरियंस के लिए ये चांस नहीं देना चाहता था कि मैंने बैक ट्रैक किसी अपने बुनियादी पॉइंट से, बुनियादी चीज से किया। मैंने भूखा नंगा उन लोगों के लिए कहा था, मैं कहता हूं और मैं कहता रहूंगा, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, जो सिंध को तोड़ने की बात करते हैं, जो सिंध में अपना नया सूबा बनाना चाहते हैं। मैंने उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं कहा था। आप लोगों के नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी 5 बहनें हैं, एक भाई है। मेरे भाई की इन लॉज वाइफ पंजाबी स्पीकिंग है। मेरी बड़ी बहन मेरे से, मैं दूसरा नंबर हूं फैमिली में, मेरी बड़ी बहन के शौहर हैदराबाद दक्कन के रिस्पेक्टेबल मिर्जा बेग फैमिली के हैं, उर्दू स्पीकिंग है। मेरे से छोटी बहन, वो मेरे चचाजाद भाई से ब्याही भी हैं, जो कि 200 साल से सिंधी हैं, जब से मेरे परदादा आए थे। उसके बाद तीसरी सिस्टर का नंबर आता है जो अनमैरिड है, उन्होंने शादी नहीं की। उसके बाद जो मेरी सिस्टर है वो दिल्ली के उर्दू स्पीकिंग में मैरिड है। आखिरी नंबर मेरी बहन दोबारा हैदराबाद दक्कन के सैयद शिया फैमिली है, उनमें बिहाई हुई है उर्दू स्पीकिंग में। मेरे दादा के सगे भाई की वाइफ अगेन हैदराबाद दक्कन की थी, बहादुर शाह जफर की डायरेक्ट डिसेंडेंट थी। मेरी सास महाजिर है। मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा मैरिड है, मेरे बेटे की वाइफ उर्दू स्पीकिंग है। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की इंगेजमेंट हो गई है, अगेन उसकी इंगेजमेंट भी, जो मेरा वुड बी सन इन लॉ है वो उर्दू स्पीकिंग है। तो मुझे कोई उर्दू स्पीकिंग से, उर्दू बोलने वाले से मैं मुखालिफ नहीं हूं। अगर होता तो ये सब चीजें मैं कभी भी नहीं होने देता। और मैं इस घर में जिसमें मैं घिरा हुआ हूं उर्दू स्पीकिंग से, और आपको पता है कि किचन का कंट्रोल हमेशा औरत के हाथ में होता है। मैं ये रिस्क उनके खिलाफ होकर ये नहीं ले सकता कि खाना खाऊं और लेट जाऊं। तो इसलिए मैं एक आपको रियल, बिल्कुल मैं मीडिया का आदमी नहीं हूं। मैंने सदर साहब को 2 दिन पहले जो मेरी मीटिंग हुई उनसे आखिरी, मैंने प्रेसिडेंट को कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे में तो बहुत बड़ी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स पॉलिटिशियंस में है वो मेरे में शॉर्टकमिंग्स हैं, मेरे में नहीं है। एक तो बगैर ब्रेक के झूठ बोलना,
दूसरा, अच्छा एक्टर होना। यकीनन पूरी मीडिया को मेरे एक्सप्रेशन, शक्ल बहुत काम आते होंगे अपने बच्चों को डरा के सुलाने के लिए। उससे ज्यादा मेरी तस्वीर किसी काम की नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरे एक्सप्रेशंस नेचुरल है। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड एक्टर। मैं यूनिवर्सिटी, मैंने प्रेसिडेंट साहब को रियली मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज है जो एक्टिंग के क्लासेस लेते हो, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। और दूसरा, मैं ऐसी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूं जहां यह हो हाउ टू टेल अ लाई, जिसका वाइस चांसलर रहमान मलिक है। वहां किसी दोस्त ने बोला रहमान मलिक से पूछ लो। रहमान मलिक कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान को, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर साहिबा या चेयरमैन सेनेट को मैं बिल्कुल शॉर्ट सबको मिला के वर्ड यूज करता हूं। आप दोबारा हाथ रखें कि पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान हुआ तो रहमान मलिक से होगा। और लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मुझे पता है सब लोग दोस्त सवाल, मैं बैठा रहूंगा जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होंगे। मैं बैठा हूं इत्मीनान से, आज मुझे बर्दाश्त कर लें प्लीज। मुझे पता है कि बहुत से लोगों की वजह यहां बैठने से उनसे बहुत सी नाराजगियां भी पैदा हो रही होंगी, सवालात भी आपके स्क्रूटनाइज होंगे कि तुमने कमबख्त फला सवाल क्यों नहीं पूछा, तुम्हारा सवाल का अंदाज ऐसा क्यों नहीं था, तुमने ये क्यों नहीं किया। आप लोग क्लास ली जाएगी और आपकी क्लास 9-0 से ली जाएगी, और जो शहजादे वहां से बैठ के हैंडलिंग करते हैं वो भी मुझे पता है। एक से तो शायद जान छूट गई है, अखबारों ने लिख दिया है कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट शायद आ गई है लंदन में, तो उससे जान छूट गई। बाकी एक कोई है साहब, खुदा करेगा वो सुधर जाएंगे या उनसे भी जान छुड़ानी पड़ेगी और छूट जाएंगे। मुझे एहसास है आप लोगों की तकलीफ का, मुझे एहसास है आपके प्रॉब्लम्स का। आप लोगों को उन्हीं मोहल्लों में और उन्हीं जगहों पे जाके रहना है जहां टोटल उनका कंट्रोल है। बिजली भी उनके हाथ में है, केबल भी उनके हाथ में है, पानी भी उनके हाथ में है, सीवरेज भी उनके हाथ में है, माल भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में है। तो अब देखा, मैं बूढ़ा आदमी, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आपने यू डिड योर जॉब वेरी वेल, आपको मुबारकबाद मिलेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो रहमान मलिक है, जिसका पाकिस्तान में एक इंच का भी स्टेक नहीं है। जहां से वो बिलोंग करता है वहां शायद उसका अपना घर भी नहीं है, शायद वहां पे उसकी नाई की दुकान भी नहीं है। इसलिए ऐसे आदमी से जान छुड़ा लेना बेहतर है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब की मेहरबानी से, बीवी पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से अल्लाह ने मेरे पे एहसान किया, मैं इस पार्टी में पैदा हुआ। इस पार्टी में मेरे पास हजारों एकड़ जमींदारियां हैं, मेरा स्टेक है, मेरे एक नहीं 4-6 मेरे बंगले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध धरती पे है, मेरा सिंध का पे स्टेक है। मेरी फैमिली यहां रहती है, रहमान मलिक की फैमिली लंदन में रहती है। मेरी फैमिली के जिंदगी का स्टेक मेरा सिंध में है और कराची में है। शुगर मिलें मेरी यहाँ है, शुगर मिल बेचता मैं यहाँ कराची की बड़ी सेंसिटिव मार्केट में मैं शुगर मिल बेचता हूँ, शुगर बेचता हूँ। और शुगर आपको पता है कि उधार पे बिकती है। इनको ये ख्याल नहीं आया, वरना शायद मेरी पेमेंट्स भी रुकवा देते। वो होगा मेरे साथ, एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये भी मैं कुर्बानियां दूंगा। मैंने दोबारा, ये मेरा हाथ अभी तक वहां है, जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी का ये फैसला कर लिया है। मैंने अपने करीबी दोस्तों को ये बता दिया है। मैंने अपनी फैमिली को आज से 15-20 दिन पहले मैंने बता दिया था। कल मैं ये फाइनली, मुझे पता था कि दिन बहुत करीब आ रहे हैं मेरे,